Welcome, students. We have discussed about the elasticity of demand and price elasticity. The meaning of price elasticity we have discussed, and how to measure it, how to calculate the price elasticity through percentage change method, that we have discussed in now the two critical questions. What are those two critical questions which are arising from this method? This method of measuring price elasticity raises two critical questions. Why should change in quantity and price be considered as percentage change rather than absolute change? अब यहाँ पे ये बोला गया है कि हम एब्सोल्यूट चेंज क्यों नहीं ले रहे हैं, परसेंट में ही चेंज क्यों ले रहे हैं. एब्सोल्यूट चेंज यानी सिंपल यूनिट्स में अगर हम चेंज कैलकुलेट करें, जैसे प्राइस अगर हाफ हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड डबल हो गई, या प्राइस 1/3 हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड 3 टाइम्स हो गई. इस तरीके से हम प्राइस इलास्टिसिटी क्यों कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, एंड वाई वी आर कैलकुलेटिंग थ्रू परसेंटेज चेंज मेथड. एंड सेकेंड क्वेश्चन हेयर अराइजेज इज, वाई शुड नेगेटिव साइन बी प्रीफिक्स्ड इन द इक्वेशन. नेगेटिव साइन हम क्यों लगाते हैं? लॉ ऑफ डिमांड में भी हमने देखा था देयर इज़ अ नेगेटिव साइन, and here also in price elasticity of demand we are studying the negative sign. Why negative sign is prefixed? Now the answers to these questions are here. First answer is, why should change in quantity and price be considered as percentage change? Now percent में why we are comparing? Now see illustration. Consider two goods here are chairs and tables. We can consider another goods also. We can take a pen and a paper also. We can take it as pencils and notebooks also. So there are many examples. Here it is given as chairs and tables. Now we are comparing the elasticities. How we are comparing? Suppose in A, price of a chair increases from 10 to 20. यानी initial was 10 and now it was 20. Now 10 increase हुआ है, एंड डिमांड हम देखें 50 to 25 हो गया है. डिमांड उसकी जब प्राइस बढ़ गया तो हम यहाँ देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था इसकी डिमांड डिक्रीज़ हो गई. और टेबल की केस दिया है बी पार्ट में, विच हेयर वी आर सीइंग दैट प्राइस ऑफ अ टेबल डिक्रीजेज फ्रॉम 20 to 10. 20 to 10 हो गया टेबल का प्राइस, और उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो गई, दैट इज़ फ्रॉम 25 to 50. फर्स्ट केस में डिमांड इज़ decreasing and in second case demand is increasing. So in case absolute change is considered, अगर हम absolute change देखें तो we can say this, that in case of chairs demand is reduced to half when the price is doubled, and in case of tables demand is doubled when the price is reduced to half. यानी यहाँ पे हाफ, डबल, 3 times, 4 times, इस तरीके से हम चेंज को डिनोट करते हैं इन एब्सोल्यूट चेंज. दिस परसेंटेज अगर हम इस तरीके से करेंगे, दिस कंपैरिजन ऑफ इलास्टिसिटी मेक लिटिल और नो सेंस. इससे कोई सेंस नहीं निकलता. वाई? अब हम बोलते हैं डबल, तो डबल वी कैन से इट एज किस चीज़ का डबल निकालना है हमको. वी आर नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट वॉट वी वॉन्ट. बट इफ़ वी कंपेयर, इफ़ वी इंस्टेड इफ़ वी परफॉर्म परसेंटेज चेंज मेथड, वी कैन कंसिडर एज परसेंटेज चेंज मेथड. वी कैन स्टेट द रिजल्ट्स लाइक 1% change in price leads to 0.5% change in demand. Means there is a perfect figure, there is a perfect percent. We can numerate it through numbers. That is why we implying that demand is much more elastic in case of tables than in case of chairs. Tables के केस में हमारी demand elastic है. Why? Because it is increasing as less in case of chairs. This comparison seems to be logical as well as meaningful. यहाँ से logical भी लग रहा है हमको. Why? Because we are applying the logic of percent, and as well as we are getting the meaning, how much increase or decrease is there. Now the answer to the second question is, why negative sign is prefixed. As we have studied in law of demand that there is a negative relationship between the price and the quantity. So in the case of elasticity में भी हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड पढ़ रहे हैं, बट डिफरेंस अमंग लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी इज़, लॉ ऑफ डिमांड हमें स्टेट करता है कि देयर इज़ अ इन्वर्स रिलेशनशिप, यानी प्राइस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड में
और प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इन नेगेटिव रिलेशनशिप है। और इलास्टिसिटी ये शो करती है कि हाउ मच इज़ द चेंज, कितना चेंज आया है क्वांटिटी डिमांडेड में ड्यू टू प्राइस। सो बोथ आर द सेम. सो हेयर वी आर सीइंग दैट देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप, दैट इज़ वाई द साइन नेगेटिव इज़ प्रीफिक्स्ड, यानी इक्वेशन के पहले हम नेगेटिव साइन लगाते हैं. नाउ हेयर सी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी. डेल्टा क्यू here states change in quantity demanded and delta p change in price into p upon q. P means initial price and q here is initial quantity demanded. So let's see what happens if we do not prefix the minus sign. अगर हम minus sign prefix नहीं करें, due to negative relationship the price and quantity will always change in opposite direction. अगर हम नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे तो जो प्राइस और क्वांटिटी है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होंगे. वन चेंज विल बी पॉजिटिव एंड अदर विल बी नेगेटिव एंड हेंस द साइन ऑफ द मेजर्ड इलास्टिसिटी डिमांड विल बी नेगेटिव. इसीलिए हम उसका साइन वी प्लेस द नेगेटिव साइन. नाउ सी एग्जांपल, इफ़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रिड्यूस फ्रॉम 10 to 5, 10 to 5 रिड्यूस हो गई पर यूनिट एंड क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज फ्रॉम 50 to 500, 50 to 100, the elasticity of demand would be -2. तो माइनस हो जाएगा. दिस इज़ व्हेन द माइनस साइन, नेगेटिव साइन इज़ नॉट प्रीफिक्स्ड. ये तब की कंडीशन है जब नेगेटिव साइन प्रीफिक्स नहीं होगा. सो इट वुड बी बेटर टू प्लेस नेगेटिव साइन ताकि हमारी इलास्टिसिटी पॉजिटिव में आ जाए. However, it is conventional to ignore the negative sign and treat elasticity of demand just 2 rather than -2. अब एक नेगेटिव साइन जो है दैट इज़ कन्वेंशनल. वाई इट इज़ कन्वेंशनल? अगर हम यहाँ नेगेटिव साइन नहीं लगाते हैं तो द आंसर विल बी गेटिंग नेगेटिव. द रेशनल बिहाइंड दिस कन्वेंशन इज़ दैट मैथमेटिकली -3 इज़ लेसर देन -2, while in the context of elasticity -3 shows higher elasticity of demand compared to -2. अगर elasticity की हम बात करें तो इस केस में -3 is higher elasticity. This is because in the context of elasticity the minus sign just indicates the negative relationship, because here we are studying the law of demand which states the negative relationship. So negative relationship में जो माइनस की वैल्यू बड़ी होगी that would be highest. अगर -3 और -4 को कंपेयर करें तो हम ये देखते हैं प्रैक्टिकली मैथ्स में हम लोगों ने स्टडी किया होगा कि -3 इज़ ग्रेटर, बट व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट द डिमांड तो इन दैट केस -4 इज़ ग्रेटर विच शोज़ हायर इलास्टिसिटी. इस कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए वी शुड प्रीफिक्स द माइनस साइन टू द फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इन दिस वे द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इज़ ऑलवेज फाउंड टू बी पॉजिटिव. इसीलिए इसकी वैल्यू दैट इज़ कोफिशिएंट ये हमेशा पॉजिटिव आती है. नाउ स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. स्लोप, वी हैव स्टडीड अबाउट द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व which was delta p upon delta q and a negative sign is prefixed. Now slope of a demand curve and elasticity of demand. Slope of a demand curve, these both two are the different concepts. The basic difference here you are seeing, slope shows total change यानी absolute change in quantity demanded in relation to absolute change in own price. अगर हम केवल क्वांटिटी और प्राइस की बात करें तो टोटल चेंज जो क्वांटिटी डिमांडेड में आता है इन रिलेशन टू प्राइस स्लोप शो करता है वो चीज़. और इलास्टिसिटी क्या शो करता है? परसेंटेज चेंज. इलास्टिसिटी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर, इलास्टिसिटी में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? हाउ मच चेंज, कितना चेंज आया. केवल अगर हमें क्वांटिटी डिमांडेड चेंज करनी है विथ रेफरेंस टू प्राइस उस केस में हम स्लोप को स्टडी करते हैं. एंड इफ़ वी आर स्टडिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट मीन्स which shows percentage change in quantity demanded in relation to some percent change in its own price. अगर कुछ परसेंट प्राइस में चेंज आया जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो गई, दैट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नाउ लेट अस स्टडी द डिफरेंस विथ रेफरेंस टू. नाउ सी हेयर slope of demand curve at point C. See in the figure in the previous page, change in price was -5 and change in quantity was 10, which was 1/2.
दैट वॉज स्लोप, ये था स्लोप। और अगर हम इलास्टिसिटी की बात करें तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस, यानी 1 अपॉन स्लोप इंटू पी अपॉन क्यू। और 1 अपॉन स्लोप क्या था अपना 1/2, तो यहाँ हमने 1/2 की वैल्यू रखी इंटू प्राइस वॉज 30 एंड क्वांटिटी वॉज 20। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे एंड वील गेट द आंसर एज 3, विच इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नाउ वी फाइंड दैट while slope of demand curve is simply the ratio, स्लोप क्या होता है, केवल रेशो होता है। और अगर हम इलास्टिसिटी बात करें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मल्टीपल ऑफ 2 रेशोज़, 2 रेशो का मल्टीपल करना, एंड वी गेट द इन्वर्स ऑफ द स्लोप। इलास्टिसिटी में हम स्लोप के इन्वर्स की वैल्यू निकालते हैं। एंड सेकेंड, इन द अबव इलस्ट्रेशन स्लोप हेयर इज़ -1/2, जो हमने यहाँ पे स्लोप निकाला -1/2, it shows that a change in price by 1 unit is related to change in quantity by 2 units। यानी अगर प्राइस, इसमें चेंज इन प्राइस कितना हो गया 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट प्राइस कम हो गया जिसकी वजह से 2 यूनिट्स क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई या कम हो गई। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अपोजिट चेंज इज़ देयर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन द अदर हैंड हम क्या देखते हैं, इट शोज़ अ चेंज इन प्राइस बाय 1%। 1% प्राइस में चेंज आया जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चेंज हुई 3%। 1% चेंज होने की वजह से 3% क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो गई। नाउ these 2 points we have concluded from the above topics, that is slope of demand curve and elasticity of demand. The problems of the same we are going to discuss in Zoom class. Thank you so much.